Good morning, students. Today's topic is phasor diagram of transformer at load. Means today we'll discuss the phasor diagram of transformer when we put load on the secondary side of transformer. Till now हमने डिस्कस किया कि phasor diagram of transformer at no load condition, जिसमें हमने सेकेंडरी साइड को ओपन रखा और वहां पर कोई भी लोड कनेक्ट नहीं किया था. तो आई विल रिवाइज द प्रीवियस वन चैप्टर इन शॉर्ट ताकि आपको वो चीज कंटिन्यूटी में रहे. उसके बाद विल डिस्कस अबाउट ट्रांसफॉर्मर एट लोड कंडीशन एंड इन दैट केस इन योर सिलेबस दिस टॉपिक इज labeled as phasor diagram of transformer at loading condition neglecting voltage drop. Now what is this neglecting voltage drop? What does it mean? ये मैं अभी आपको explain करूँगी. But before that, just go to the previous, ensure the previous lecture of that phasor diagram of transformer at no load condition. Because उसी को हम extend करेंगे when we will draw the phasor diagram of loaded transformer. Okay. So this was your transformer block diagram. And primary is connected to the alternating supply voltage and secondary we kept it open. हमने इसको open छोड़ा in case of no load condition of transformer. ठीक है, no load condition of transformer. इस condition में V is applied over here, so this is your V1. I naught current starts flowing through the primary winding and alternating flux is set up in core. This was your I2, but if secondary open है तो I2 को आप कंसीडर नहीं करेंगे. यहाँ पर आपका क्या होगा E2 और यहाँ आपका होगा E1, EMF induced. According to the principle, whenever alternating supply is given to the primary side of the transformer, then alternating current starts flowing through the primary winding and this current is called as no load current. Then alternating flux is set up into the core. ठीक है, अब यहाँ पर ओपन है, नो लोड है, तो हमने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया था. दिस इज वोल्टेज अप्लाइड एंड दिस इज योर फ्लक्स एंड आई नोट वाज lagging behind the voltage by an angle which was less than 90 degree. So this was your I node current. Phi node is the phase angle between voltage applied and no load current. यहाँ पर आपने क्या दिखाया था V2 and your E1 means EMF induced into the primary winding and यहीं पर आपने क्या दिखाया था E2 EMF induced into the secondary winding. और हमने क्या नोटिफाई किया था? It has been already notified कि no load current has two component. One is working component and one was magnetizing component. तो हमने इसको इस तरह से ड्रॉ किया था. क्लियर? ये no load का था. Now we will extend this diagram to or this circuit to the loaded condition of transformer. कैसे होगा? अब हम यहां से क्लियर करेंगे खाली कि इधर हम अब the topic is phasor diagram of transformer at load. Clear? At load पे we have to connect load across the secondary winding. Clear? This is your load connected to the secondary winding. अब हमने इसमें I2 को भी कंसीडर किया है because this time the circuit is complete and according to this load whether it is resistive load, inductive load जिसे हम L से डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं and your capacitive load depending upon this and this means load depending upon if it is resistive load तो आपका V2 and I2 का phase angle will be 0. Clear? If it will be inductive load, this is for resistive load. Inductive load के लिए अगर लोड हमारा इंडक्टिव हमने कनेक्ट किया तो
I2 में 90 डिग्री का लैगिंग फेज एंगल होगा, ठीक है। मीन्स I2 lag behind the voltage V2 by an angle of 90 degree. Clear? If your load will be capacitive, अगर लोड आपका कैपेसिटिव होगा तो V2 एंड I2 में जो फेज एंगल होगा that will be 90 degree leading. Means I2 leads the voltage V2 by 90 degree. Clear? ये हमने कल भी डिस्कस किया था, वही चीज अब हम डायग्राम में ड्रॉ करेंगे। एक और चीज, इफ यू रिमेंबर ऑफ योर प्रीवियस लेक्चर, जस्ट इसी से पहले वाला, वेयर वी हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट द ट्रांसफॉर्मर एट लोडिंग कंडीशन। हमने उसमें क्या देखा था कि जब हमने लोड अप्लाई किया, स्टार्टिंग में नो लोड पे हमारा आई लोड करंट है, तो यहाँ पर फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ फाइव। फिर यहाँ पर हमने लोड कनेक्ट किया तो I2 करंट फ्लो करना शुरू करा, जिसकी वजह से इफ यू रिमेंबर यहाँ पर हमारा एक और फ्लक्स सेटअप होता है कोर के अंदर, जो कि which will be in opposite direction to that of the previously setup, जो आपकी फ्लक्स है उससे इस डायरेक्शन में। अब अगेन हमारे यहाँ से I1 डैश एक काउंटर बैलेंसिंग करंट प्राइमरी वाइंडिंग में ड्रॉ किया था, कहाँ से? सोर्स से, मतलब जो हमने यहाँ पर सोर्स लगाया जिससे हम सप्लाई दे रहे थे I1 डैश, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा अगेन प्रीवियस कंडीशन को सेटअप करने के लिए एक और प्लस I1 डैश था। दिस I1 डैश वाज योर काउंटर बैलेंसिंग करंट, दिस वाज योर काउंटर बैलेंसिंग करंट एंड इट वुड बी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद I2। मीन्स जहां पर हम I2 ड्रॉ करेंगे, I1 डैश फेजर डायग्राम में कहाँ दिखाएंगे? 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद I2। काउंटर बैलेंसिंग करंट और I2 के बीच में दोनों में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। अब अगर हम लोडिंग कंडीशन में, वापस से मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगी। दिस वाज जस्ट टू रिवाइज द प्रीवियस वन लेक्चर अबाउट नो लोड, बिकॉज वी आर एक्सटेंडिंग दिस फेजर डायग्राम into your loading condition transformer, into the transformer at loading condition. Clear? अब इसमें हम क्या करेंगे, अब आप यहां तक याद रखिए ये चीज। दिस इज योर डायग्राम फॉर ट्रांसफॉर्मर, व्हेन दिस इज योर ट्रांसफॉर्मर डायग्राम। और वी कैन डू वन मोर थिंग कि हम उसको दोबारा से ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर पहले की तरह जस्ट कि हमें ये हमारा फ्लक्स था ये, ठीक है। अब इस डायग्राम को हमें वापस से शो करना है किसमें? फेजर डायग्राम में हमें वोल्टेज और करंट की फेज एंगल दिखाना है। तो सबसे पहले हम रेजिस्टिव लोड काउंट करेंगे कि अगर लोड रेजिस्टिव हमने यहाँ पर कनेक्ट किया, देन व्हाट विल बी द फेजर डायग्राम। क्लियर? स्टार्टिंग से जस्ट दिस इज योर V1 जो आपने प्राइमरी साइड में अप्लाई किया, यहां पर आपका 5, दिस वाज योर I नोड, नो लोड करंट थ्रू द प्राइमरी वाइंडिंग। अब फिर से वापस आ जाइए, V2 ये आपका E2 यहां दिखाया था, E1 को आप यहां पर दिखा सकते हो, नीचे होता है, ऊपर दिखाएंगे तो -E1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपका V2, ये आपका E2। जब V2 हमने शो किया तो अगर रेजिस्टिव लोड है तो मैंने क्या लिखा? When load is resistive, then V2 और I2 में phase angle will be 0. Means the current I2 will be in phase with the V2 हम यहाँ शो करते हैं। The current I2 will be in phase with the applied voltage across the load. तो I2 कहाँ होगा? In phase means at the same line. There will be no phasor angle between V2 and I2. You can see it is in same line, so we can say I2 and V2 are in phase when load is resistive. You have to specify when load is resistive, then I2 is in phase with V2. Clear? I1 dash कहाँ ड्रॉ करेंगे? I1 dash your counter balancing current will be 180 degree out of phase with I2. तो it will be over here. अब
this was your counterbalancing current, this was your no load current. What will be the main current through the primary winding? ये करंट था जब नो लोड कंडीशन थी, ये जब काउंटर बैलेंसिंग करंट कब ड्रॉ किया, जब मोटर पे लोड अप्लाई, सॉरी ट्रांसफार्मर पे आपने सेकेंडरी पे लोड अप्लाई किया, तो आपका मेन प्राइमरी का करंट क्या हो जाएगा, वेक्टर सम ऑफ दीज टू, और जिसे हम बोलेंगे प्राइमरी करंट आई। फेज एंगल V1 और I0 के बीच में फेज एंगल क्या होगा, फाई नॉट। V1 और I1 के बीच में क्या होगा, फाई 1। क्लियर, ये आपके फेज एंगल होंगे। अब सेकेंड केस, जब हम इंडक्टिव लोड अप्लाई करते हैं, क्लियर, जब हमारा लोड इंडक्टिव होगा, इसी डायग्राम को हमें मोल्ड करना है, इसी में हमें दिखाना है फेजर एंगल डिफरेंस बिटवीन V2 और I2, और उसके अकॉर्डिंग आपका ऊपर वाला जो ये एंगल्स है वो हमारे चेंज हो जाएंगे लिटिल बिट। अभी आप इसी को याद रखिए, इसी को हम आगे लेके चलते हैं। प्राइमरी साइड पे हमने वोल्टेज अप्लाई किया, रेफरेंसेस V1, यहाँ पर आपका 5, इधर आपका V2, यहीं पर आपका E2 माइनस E1, यहाँ दिखा सकते हैं, यहाँ नहीं दिखाते हैं तो यू कैन से दिस इज योर E1। अब दिस वाज योर I नोड, नो लोड में करंट, ठीक है, बट अब लोड अप्लाई करते हो तो इसको और आगे हमें ड्रॉ करना है, तो V2, अब I2 ये जो लोड में से फ्लो करेगा, ये I2 करंट, where will we have to show it? We have to show that V2 एंड I2 के बीच में लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग फेजर एंगल होगा। लैगिंग एंगल होगा किसके बीच में, तो अगर V2 यहाँ है तो I2 विल बी ओवर हियर, ठीक है, लैग बिहाइंड द वोल्टेज phi2। क्यों लिखा phi2? बिकॉज बिटवीन V2 एंड I2 इन दोनों के बीच में फेज एंगल होगा, दैट विल बी योर phi2, ठीक है। अब इसके और इसके बीच में phi नॉट, V1 और I0 के बीच में phi नॉट, वही हमने जैसे I2 और I1 डैश दोनों 180 डिग्री की फेज एंगल पे थे, इफ I2 विल बी हियर, इसका 180 डिग्री फेज एंगल क्या होगा, विल बी लाइक दिस 180 डिग्री। यहां पर आप क्या दिखाएंगे, I1 डैश, और इन दोनों का रिजल्टेंट करंट इज मेन प्राइमरी करंट, जो आपका I1। क्लियर, ओनली दिस इज द डायग्राम। इसके और इसके बीच में फेज एंगल phi1, V2 और I2 के बीच में, I2 एंड V2 के बीच में फेज एंगल phi2, V1 एंड I0 के बीच में phi नॉट, V1 और I1 के बीच में phi1। डन। नाउ योर थर्ड वन, this was for resistive load, this was for inductive load, now the diagram for your capacitive load। यहां पर जो लोड हमारा कैपेसिटिव होगा, तो क्या होगा, स्टार्ट फ्रॉम हियर, दिस वाज योर V1, इधर आपका 5, इधर आपका V2, E2, E1, here was your I नोड, जैसे हम शुरू से करते आ रहे हैं। अगेन डिफरेंस किसमें दिखाना है हमें, सेकेंडरी साइड के वोल्टेज और करंट में, और उसका इंपैक्ट जो आपका किस पे पड़ेगा, काउंटर बैलेंसिंग करंट के फेज एंगल चेंज होगा, ठीक है। अब V2 और I2 दोनों में लीडिंग फेजर एंगल होगा, बिकॉज द लोड इज कैपेसिटिव, तो V2 अगर यहाँ है तो I2 उससे पहले शुरू होगा तो लीड करेगा। अब इन दोनों के बीच में अगेन फेज एंगल इज phi2, extend it 180 degree out of phase, what it will be, it should be and it would be I1 dash। क्लियर, इन दोनों के बीच का आपका फेजर एंड जो रिजल्टेंट करंट होगा, दैट विल बी योर I1, मीन्स प्राइमरी का मेन करंट। फेज एंगल डिफाइन कर दो, दिस वाज योर V, ये I नोट, तो इसके और इसके बीच में phi नोट, V1 एंड I1 डैश के बीच में phi1 डैश। क्लियर, और ये हमारा phi2। सो दिस इज द कंडीशन व्हेन लोड इज कैपेसिटिव। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक,
फॉर ऑल द टाइम जब भी आपको फेजर डायग्राम ड्रॉ करने हैं यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फेजर डायग्राम ऑफ ट्रांसफॉर्मर अंडर नो लोड कंडीशन, और उसी को हम आगे एक्सटेंड करते हुए जाएंगे जब हमने लोड कनेक्ट किया और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन और अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ लोड, टाइप ऑफ लोड, हम ये फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे. दिस वाज फॉर रेजिस्टिव लोड.